دہشت گردوں خطرناک قیدیوں کی جیلوں کو تفریح گاہ نہ بنائیں۔ آئی جی جیل کے غیر متعلقہ افراد کے جیلوں میں داخلے بارے سخت احکامات جاری کر دیے گئے۔ بالکل، سپرنٹینڈنٹ جیل کا دورہ کرنے والوں کے نام مرکزی دروازے پر آویزہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ علاوہ ازیں جیلوں کے حساس اور داخلی راستوں پر غیر متعلقہ افراد کے جیلوں پر داخلے کے لیے کڑی نظر رکھنے کا مراستہ جاری کیا جا چکا ہے۔ آئی جی جیل کا افسران کو غیر متعلقہ افراد کے جیلوں میں داخلے کے حوالے سے سخت احکامات جاری کیے جا چکے ہیں، تو دہشت گردوں خطرناک قیدیوں کی جیلوں کو تفریح گاہ نہ بنائیں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کا دورہ کرنے والوں کے نام مرکزی دروازے پر آویزہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ مزید کیا ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے، آئی جی پنجاب کی جانب سے تفصیلات بتائیں گے علی ساہی۔ جی علی ساہی۔ جی بالکل، اس وقت لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں خطرناک قیدی موجود ہیں، دہشت گرد جو ہیں وہ قید ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سزائے موت کے قیدی موجود ہیں، تو ان کو تفریح گاہ نہ بنایا جائے۔ اسی حوالے سے آئی جی جیل خانہ جات کی جانب سے تمام سپرنٹینڈنٹس کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جیلوں میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ سختی سے منع کیا گیا ہے، چونکہ بہت ساری ایسی شکایات رپورٹ ہوئی ہیں جس میں غیر متعلقہ افراد جو ہیں وہ جیلوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائریکشن دی گئی ہے کہ جیلوں کے داخلی اور حساس مقامات پر کڑی نظر رکھی جائے، کسی بھی جگہ سے کوئی بھی غیر متعلقہ شخص جو ہے وہ جیل کے اندر نہ آ سکے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل اس بات کا پابند ہوگا کہ جتنے بھی افسران یا جن کو اجازت دی گئی ہے ان کی فہرست مرکزی گیٹ پر آویزہ کرے، تاکہ کوئی بھی ان کے ساتھ غیر متعلقہ شہری جو ہے وہ جیل کا دورہ نہ کر سکے۔ اس میں باقاعدہ طور پر تمام رولز کا حوالہ دیا گیا ہے اور ڈائریکشن دی گئی ہے کہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کی جو داخلہ ہے وہ جیل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی فول پروف بنائی جائے، احکامات پر عمل درآمد کروایا جائے، اور کسی بھی جیل میں کسی بھی ایسے شہری کو جیل کے اندر جانے کی اجازت نہ دی جائے جس کے پاس اجازت نامہ نہ ہو۔ کسی بھی ایسے شہری نے اگر وزٹ کرنا ہو جیل تو اس کو آئی جی جیل خانہ جات کا اجازت نامہ درکار ہوگا۔ ڈی آئی جی جیل خانہ جات کی جانب سے تمام سپرنٹینڈنٹ کو مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے، اور ایسی شکایت یا مانیٹرنگ کے دوران کوئی چیز ایسی رپورٹ ہوگی تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو اور سپرنٹینڈنٹ جیل کے خلاف کارروائی ہوگی، چونکہ جیلوں میں بڑے پیمانے پر خطرناک قیدی موجود ہیں، تو ان کو سیکیور بنانے کے لیے سیکیورٹی فول پروف بنانا لازمی ہے۔ شکریہ، ہمارے ساتھ علی ساہی تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سینکڑوں پرائیویٹ اسکولوں میں اسکول کاؤنسلز فعال نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والے پرائیویٹ اسکولز کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ بیسک ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے پرائیویٹ اسکولوں سے اسکول کاؤنسلز کے قیام اور بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ کا ریکارڈ مانگ لیا ہے، تو سینکڑوں پرائیویٹ اسکولوں میں اسکول کاؤنسلز فعال نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والے پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف سخت کارروائی کا اب فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی جنید۔ جی، سینکڑوں پرائیویٹ اسکولوں میں اسکول کونسل کو فعال نہ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، جس کے اوپر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے اب نوٹس لیتے ہوئے اسکولوں سے ایک تو بلڈنگ ہیلتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ مانگ لیا ہے، اور دوسرا ان کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ متعلقہ اسکول کونسلز جو کہ انہوں نے فعال کی ہیں یا نہیں کی، اور اس کے ممبران کی جو فہرست ہے وہ محکمہ کو فوری طور پر جو ہے وہ بھجوائیں۔ اور اس حوالے سے 15 سپٹمبر کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ جو تمام پرائیویٹ اسکول ہیں وہ اپنی اسکول کونسل کے حوالے سے ریکارڈ جو ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کو بھجوائیں۔ اس حوالے سے جو اسکول ہیں وہ اپنے بلڈنگ ہیلتھ سرٹیفکیٹ بھی جو ہے وہ ساتھ جمع کروائیں گے، اور اس حوالے سے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والے تعلیمی اداروں کو 5 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ریکارڈ جو ہے وہ 15 ستمبر تک ہر صورت اتھارٹی آفس میں جمع کرانا ہوگا۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ بلڈنگ ہیلتھ سرٹیفکیٹ اور اسکول کونسل کے حوالے سے ریکارڈ فراہم نہ کرنے والے جو اسکول سربراہان ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی لائی جائے گی۔ جنید ریاض، بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار مزدوروں کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ فیکٹری، صنعتی اور دیگر ورکرز کو لیبر قوانین کے دائرہ کار میں لانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ بالکل، ورکرز، ہوم بیس ورکرز، ڈیجیٹل پلیٹ فارم ورکرز کو لیبر قوانین میں شامل کیا جائے گا۔ تعمیراتی اور زرعی شعبوں کو بھی مزدور قوانین کے دائرہ کار میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
रोजगार फराहम करने वाली तमाम एजेंसियों को लेबर कानून के दायरे में लाने के लिए भी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। क्या प्लानिंग की गई है, तफसीलात बताएंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। जी बिल्कुल, पंजाब की तारीख में पहली बार मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की जाएगी और इस सिलसिला में महकमे सोशल सिक्योरिटी की जानिब से जितने भी फैक्ट्री और इसके अलावा सनती मजदूर हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ख़ास जो कानून साजी है वो करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। बताया गया है कि मुख्तलिफ़ कैटेगरी के मजदूर जिसमें गिग बेस वर्कर्स शामिल हैं और इसके अलावा होम बेस डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर्स से दीगर जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए एक ख़ास कवानीन तारीफ करवाई जाएंगी और इन कवानीन के दायरा कार में इन तमाम मजदूरों को लाया जाएगा। जबकि इसके अलावा मजीद ये बताया गया है कि जितनी भी तमीराती और सनती शोबे हैं उनको भी मजदूर कवानीन में शामिल किया जाएगा और इसके अलावा उनको दायरा कार में लाने के लिए ख़ास हिकमत अमली भी मुरतब की जाएगी और इसी के साथ साथ जो रोज़गार फराहम करने वाली तमाम तरह एजेंसियाँ हैं उनको भी लेबर कवानीन के दायरा कार में लाया जाएगा। जबकि इसके अलावा महकमा सोशल सिक्योरिटी की जानिब से बताया गया है कि तमाम मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इसके अलावा जितनी भी एजेंसीज़ जो ख़ास तौर पर जो ये मुलाजमतें फ़राहम करते हैं उनको भी जो कवानीन बनाए जा रहे हैं उसके दायरा कार में लाने के लिए जो हिकमत अमली है वो मुरतब की जा रही है और इसके अलावा जो एजेंसियों को लेबर कवानीन के दायरा कार में लाया जा रहा है इसका मकसद ये है कि जो मज़दूरों का तहफ़्फ़ुज़ है और उनके जो हकूक़ हैं उनका जो है हकूक़ उनको बराबर मिल सकें। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो मज़दूर यूनियन हैं उनकी जो तश्कील है इसमें भी अमली करदार अदा किया जाएगा और बाकायदा तौर पर जितनी भी अंजुमन साजी होगी उनकी भी भरपूर जो अदारा है वो हमायत करें। जी कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं मुलाजमीन की कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपये करने का ये मामला है और महकमा खजाना ने ताहाल उजरत 37,000 देने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। महकमा कानून की जानिब से गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है जबकि महकमा खजाना के डेली वेजेस मुलाजमीन नई उजरत से अभी तक महरूम हैं। हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर मौजूद हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी कैसे खोकर, आगाह कीजिएगा। महकमा खजाना ने अभी तक जो डेली वेजेस है मिनिमम कम अज़ कम उजरत 37,000 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिसकी वजह से महकमा खजाना के कोई 60 से 70 मुलाजमीन जो है उनको डेली वेजेस जो है वो 37,000 रुपये के हिसाब से नहीं मिल रही, वो इस वाले से परेशान है। और आज महकमा खजाना में ये मुलाजमीन इकट्ठे हुए और इन्होंने मुतालबा किया इकट्ठे होकर कि इनको भी जिस तरह महकमा लेबर ने नोटिफिकेशन जारी पिछले हफ्ते कर दिया है डेली वेजेस से कम उजरत 37,000 का और महकमा कानून ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, लिहाजा महकमा खजाना भी नोटिफिकेशन जारी करे ताकि तमाम महकमों के मुलाजमीन को और महकमा खजाना के मुलाजमीन को जो 1423 रुपये डेली है वो नए 37,000 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाए और 37,000 रुपया जो है कम से कम उजरत मिलना शुरू हो जाए। लेकिन अभी तक जो है महकमा खजाना जारी नहीं किया। ठीक है, कैसे खोकर बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत का बिजली की बचत के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। मुल्क भर में 8 करोड़ पंखों को तब्दील करने की मनसूबा बंदी कर ली गई है। 8 करोड़ पंखों की तब्दीली से सालाना 5,000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। 100 वाट बिजली लेने वाले पंखे को 50 वाट के पंखों से तब्दील किया जाएगा जबकि 15,000 रुपये फी पंखा एक साथ की सूरत में अदायगियां करना होंगी। सार्फिन इस हवाले से इन्वर्टर लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करवा सकेंगे। मजीद तफसीलात बताएंगे इस बारे में शाहिद नदीम सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की बचत के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया है और इस तनाजुर में मुल्क भर के 18 करोड़ जो पंखे हैं इनको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ज़रिए तब्दील कर दिया जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि हुकूमत ने ये कमर्शियल बैंक्स और तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ एक मुआहदा करने का फ़ैसला किया गया है जिसके तहत सार्फिन को जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जो पंखे हैं वो फ्राहम किए जाएंगे। इस वक्त जो पंखे मार्केट में चल रहे हैं वो 100 वाट के हिसाब से चल रहे हैं जबकि नई टेक्नोलॉजी से जो बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखे होंगे वो 50 वाट तक दिए जाएंगे, जिससे मजमूई तौर पर जो कैलकुलेशन की गई है उसके तहत सालाना 5,000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। जो तरीकाकार अपनाया गया है उसके तहत हुकूमत ऑनलाइन पोर्टल बनाएगी, वहाँ पे सार्फिन अप्लाई कर सकेंगे और जो कामयाब होंगे उन सार्फिन को 12 इकसात की सूरत में 15,000 रुपये फ़ी पंखे के हिसाब से अदायगी करना होगी और वो बिलों की सूरत में सार्फिन से इकसात की सूरत में वसूल किए जाएंगे। साथ में ये भी मुआहदा किया जाएगा कि हुकूमत के जो मंजूर शुदा
कंपनीज़ होंगी, उन्हीं के तहत ये पंखे लगाए जाएंगे और सारिफ के वो घर तक पहुँचेंगी और घरों में जाकर इन्वर्टर पंखे और उनकी तनसीब करेंगी ताकि जो बिजली बचत का प्लान है इसको जल्द तकमील तक पहुँचाया जा सके। शाहिद सुप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की बात की जाए तो शहर का मतलब बरालूद होने से ताज़ा हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हो गया है और मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है और मौजूदा सूरत हाल क्या है शहर में मौसम की, अक्सर सज्जाद हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स देंगे। जी अक्सर, मौसम का हाल बताइएगा। जी बिल्कुल, कुदरत कब मेहरबान हो जाए ये तो किसी को भी पता नहीं चलता। जैसे सुबह के औकात में हब्स महसूस की जा रही थी, गर्मी की शिदत में खासा जो है इजाफा देखने में नज़र आ रहा था। खासे शहरी परेशान थे, लेकिन अचानक जो है मौसम तब्दील होने से मतला जो है अबर आलूद हो गया है और खासी जो है ताज़ा हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, जिसके बाद शहरी लाहौर के वासी जो है वो खासे खुश भी हो गए हैं, चेहरे उनके खासे खिलखिलाव होते हैं, क्योंकि सुबह सवेरे होने वाली गर्मी के बायस वो काफ़ी परेशान थे और तवक्का कर रहे थे कि मौसम अगर बारिश नहीं भी होती तो लेकिन हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हो जाए। ताहम अब जो है मतलब अबर आलूद हो गया है अचानक से और ताज़ा हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, जिसके बाद जो है खासा मौसम खुशगवार भी महसूस किया जा रहा है। बात करें पेशन गोई के हवाले से तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज के रोज़ 30 से 40% जो है चांसेस चंद घंटों में बारिश के किए जा रहे हैं। ताहम रवा हफ्ते बारिश के कोई भी इम्कानात नहीं है। आज के रोज़ 30 से 40% जो है 40 चांसेस जो है वो जाहिर किए गए हैं। बात करें अभी के दर्जा हरारत के हवाले से तो इसका टेम्परेचर जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि उसको महसूस जो है वो 41 किया जा रहा था, लेकिन अब ताज़ा हवा चलने के बाद जो है कम महसूस किया जा रहा है। तो हम बात करें हवा में नमी के तनासुब के हवाले से, जिस शहर लाहौर में हवा में जो नमी का तनासुब है उसको 60% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद पहले जो अक्सा हमारे साथ थी और मौसम के हवाले से अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर ओहदे पर बहाल। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। हाईकोर्ट का दरख्वास्त गुजार खातून को नोटिस भी इस हवाले से जारी। मजीद डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को ओहदे पर बहाल कर दिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलअदम करार देने का जो सिंगल बेंच का फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है और हुक्म इम्तला जारी किया है और दरख्वास्त गुजार खातून जो है इशबा कामरान उनको नोटिस जारी किया है। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की है और वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा और एडिशनल अटॉर्नी जनरल राशिदीन नवाज कसूरी पेश हुए हैं और उन्होंने इस हवाले से दलाल दिए हैं और उनका ये मौक़िफ़ था कि सिंगल बेंच ने चेयरमैन नादरा की तैनाती कलअदम करार देने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं किया, जिस पर 2 रुकनी बेंच के सरबराह ने इस्तफसार किया कि इस पटिशन में कौन सा नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ था, जिस पर अदालत को बताया गया कि चेयरमैन नादरा की तैनाती का नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ था। तो इसमें अदालत ने मौक़िफ़ सुनने के बाद वफाक के वकला का तो जो चेयरमैन नादरा हैं उनकी तैनाती को कलअदम करार देने का फैसला जो सिंगल बेंच का था उसको मुअत्तल कर दिया है, जिसके बाद चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर जो है वो अपने अहदे पर बहाल हो गए हैं और इस हवाले से जो केस है उसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दे के लिए मुलतवी की गई है और ये जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा हैं उन्होंने उनकी गुज़श्ता रोज़ उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी और तैयारी की थी और इसमें आज डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने दीगर वफाक के वकला के साथ अदालत में पेश हुए हैं और अदालत ने वफाक के वकला का मौक़िफ़ सुनने के बाद जो लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर हैं चेयरमैन नादरा उनको ओहदे पे बहाल कर दिया है और खतून जो दरख्वास्त गुजारी इशबा कामरान थी जो कमरा अदालत में मौजूद थी उनको नोटिस जारी किए गए हैं। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस बारे में।